So this is another question. The question is question number 5. A, B, C play cricket such that A runs ratio B runs 3:2 and B runs ratio C runs equals to 6:11. So if the total runs scored are 234, find how much did each score. So my dear student, he given us here two ratios, the ratio between A ratio B and the ratio another ratio is between B ratio C. So here if we talk about the ratio A ratio B equals to, according to the first situation, 3:2 and B ratio C is equals to 6:11. So my dear student, here B is the common ratio. So our duty is we have to equal the ratio B in both the ratios. So we will do the multiplication of 3 in ratio first. So when we do the multiplication of 3, it will become 3 3 ja 9, okay, and 3 2 ja 6. Now B is similar in both the condition. The first condition having 9:6 and second condition is 6:11. So now B is equal in both the situations. So now we will write the A ratio B ratio C equals to, what is the ratio of A? That is 9. And what is the ratio of B? That is 6. And what is the ratio of 6? C, that is 11. Okay, so now we will let the ratio, okay, let the total scored be, so 9x plus 6x plus 11x equals to, how much is the total scored? The total scored is 234. So now you will add this. So 9 6 15, 15 and 11, 26x equals to 234. And when you will divide this situation, then you will get the value of x, that is 9. 234 divided by 26, the answer will be 9. Okay, so now you can find each one of the score, means how much score A, how much score B, how much score C. So when we talk about the A score, so A ratio is 9x, so 9 multiply 9, that is 81. Okay, it is very simple, very easy. And now we will find out the B. So B ratio is 6x and the B score is 6:9, that is 54. And C ratio is 11x, that is 11 multiply 9, that is 99. So this is the scores of each one of them, A, B and C, and this is the total score. So I hope this question is very clear. Okay, so try to do more questions in this exercise. Okay, till then, okay, bye, take care. So good morning student, welcome back again. This is exercise 8B and question number 6, because up to question number 5 we have already completed here. Okay, so this is question number 6, and in question number 6 we have to find A ratio B ratio C if A ratio B is equals to 3:7 and B ratio C is equals to 5:8. So what we will do now, we will convert this situation into a fraction form. So A upon B is equal to 3/7 and B upon C is equal to 5/8. So from the given situation, what do you understand? Okay, what comes in your mind? So here B is that only term that come in these two given situations.
यानी कि बी एक ऐसी टर्म है जो इन दोनों कंडीशंस में अप्लाई हो रही है, यहाँ भी है बी और यहाँ भी है। बट अगर ए की बात करें तो ए है यहाँ पे और यहाँ पे सी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, जो ये बी कॉमन टर्म है इसको हमें इक्वल करना होगा, ठीक है। और ये इक्वल कैसे होगा, व्हेन वी टेक द एलसीएम ऑफ बी, ठीक है ना। तो बी के जो एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, 7 and 5। तो यहाँ पे लिखेंगे एलसीएम ऑफ 7 and 5। सो 7 and 5 का एलसीएम कितना होगा, 35। 7 and 5 इक्वल्स टू 35। तो हमने कुछ इस तरीके के क्वेश्चन किए थे एक बार, जब डिनोमिनेटर में हमारी कुछ अर्लियर एक्सरसाइज थी इनिशियल चैप्टर में जो हमारे थे, कि अगर डिनोमिनेटर 35 है तो इसको न्यूमरेटर के इक्वल कैसे बनाया जाए दोनों में। तो उसके लिए कंसेप्ट क्या होता था, तो उसके लिए कंसेप्ट ये होता था a अपॉन b इक्वल्स टू 3 अपॉन, तो 7 में मल्टीप्लाई 5 का होगा तो ऊपर भी का मल्टीप्लाई कितने का होगा बेटा, 5 का ही होगा, जिसकी वजह से फ्रैक्शन कितना बन जाएगा, 15 अपॉन 35, ठीक है। ऐसे में b अपॉन c में करूंगा तो यहाँ पे क्या होगा, 5 अपॉन 7, क्योंकि ऊपर b है और एलसीएम 5 है तो 35 कितना आएगा, कब आएगा, जब मैं 5 का मल्टीप्लाई किस में करूंगा, 7 के साथ। तो अगर मैंने न्यूमरेटर में 7 का मल्टीप्लाई किया है तो मुझे डिनोमिनेटर में भी 7 का मल्टीप्लाई करना होगा। तो जब मैं डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करूंगा 7 का तो ये कितना होगा, 35 अपॉन 88 7 या 56, ठीक है। तो अब मेरे पास ये सिचुएशन है a अपॉन b इक्वल टू 15 अपॉन 35, b अपॉन c इक्वल टू 35 अपॉन 56। तो नाउ अब देखो सिचुएशन में कि 35 दोनों में सिमिलर है, दोनों में इक्वल है। तो नाउ वी विल राइट द a रेशियो b रेशियो c, ठीक है। तो a का रेशियो कितना है, 15, सिंपल है। b का रेशियो कितना है, 35, बिल्कुल आसान। c का कितना है, 56। तो यहां तक हम इस क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं, क्वेश्चन का आंसर यही होगा। लेकिन बट अगर ये किसी एक कॉमन नंबर से डिवाइड हो सकता है तो आप इसको किसी इन तीनों को किसी एक कॉमन नंबर से डिवाइड कर सकते हो। अगर नहीं होता तो कोई बात नहीं, आप अपना आंसर जो है यहीं पे लीव कर सकते हो, ठीक है। सो दैट्स इट, ये इतना ही था क्वेश्चन, ठीक है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 9 बिकॉज question number 7, 8, okay, exactly similar to your examples, okay. So at least one time you have to practice your example before solve the exercise. So question number 7 and 8 totally belongs to the examples, okay. So now this is question number 9. This question is different, okay. So here a ratio b ratio c equals to 4 ratio 5 ratio 7 and c equals to 42. तो find a and b। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चंस जो है हम एक्सरसाइज 8a में ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। लेकिन एक बार फिर से रिपीट करेंगे यहीं पे, तो कैसे होगा ये देखना है, ठीक है। तो मैं अगर यहाँ पे लेट करूं तो a का रेशियो क्या होगा, 4x, और b का रेशियो क्या होगा, 5x, और c का रेशियो क्या होगा, 7x। बट अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो इसने c का रेशियो, c किसके इक्वल दिया है, 42 के, और c का रेशियो क्या है, 7x। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, 7x इक्वल्स टू 42 एंड व्हेन वी विल गेट हियर फ्रॉम हियर we will get the value of x. So x equals to 42 upon 7, 7 6 is 42. So value of x is 6. So now you will find the value of a and b. So how will you find the value of a and b? So a equals to 4x and put the value of x here, 6 equals to 24 and b equals to 5x. 5 into 6 equals to 30. I hope this question is completely understood. Okay, ये बहुत ही आसान वे है इसको करने का, इससे ज़्यादा आसान और कुछ नहीं हो सकता। तो इसको देख लो एक बार, अच्छा है क्वेश्चन, ठीक है। This is question number 10. Again it is a difficult question
4a is equal to 5b is equal to 12c and you have to find a ratio b ratio c. So my dear student, we will see here this situation. अगर मैं यहाँ पे थोड़ी देर के लिए नंबर को हटा दूं तो a is equal to b है और b is equal to c है। तो अगर ये तीनों आपस में इक्वल हैं तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, 4a इक्वल्स टू 5b इक्वल टू 12c और इसको मैं x के इक्वल मान सकता हूँ। क्यों? क्योंकि ये तीनों आपस में इक्वल तो हैं, तो ये सारे के सारे किसके इक्वल हो सकते हैं, x के इक्वल हो सकते हैं, क्योंकि जब ये पहले से ही तीनों इक्वल हैं आपस में। ठीक है, तो यहाँ से क्या करना होगा, हमें तीनों की अलग अलग वैल्यूज निकालनी होगी। जैसे मैं 4a की वैल्यू निकालूं तो 4a इक्वल टू कितना होगा, x, और a की वैल्यू कितनी होगी यहाँ से x अपॉन 4। सिंपल है, आसान है, इजी इजी बनाओ, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ इसको। 5b इक्वल टू कितना है x, तो b की वैल्यू कितनी होगी x अपॉन 5। सिमिलरली जब मैं c की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा तो c की वैल्यू कितनी होगी x अपॉन 12। ये होगी मेरे पास सिचुएशन। ठीक है जी, दोबारा से रिपीट करने की जरूरत नहीं है। अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा तो वो वीडियो को पॉज करके दोबारा से एक बार देख सकता है। ठीक है, इसके बाद मुझे क्या करना होगा, ये रेशो मुझे फाइंड आउट करना है, a रेशो b रेशो c। तो इस टाइप की सिचुएशन हमने पहले भी क्रैक करी हुई है इससे पीछे की एक्सरसाइज में। तो मुझे सिंपली क्या करना होगा, अगर मैं यहाँ पे देखूं x अपॉन 4 रेशो और x अपॉन 5 रेशो x अपॉन 12, तो यहाँ पे मुझे 4, 5 और 12 का एलसीएम लेना होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे एलसीएम ऑफ 4, 5 एंड 12। तो कितना एलसीएम होगा यहाँ पे 4, 5 एंड 12 का, मेरे हिसाब से तो होगा 60। ठीक है, तो एलसीएम कितना होगा इसका, 60 होगा। अब यहाँ से क्या करेंगे बेटा, हम इसकी वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। तो कितना होगा जब मैं a रेशो b रेशो c की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा, सो 1 अपॉन 4 इंटू 60। ठीक है, 1 अपॉन 4 इंटू 60 रेशो 1 अपॉन 5 इंटू 60 रेशो 1 अपॉन 12 इंटू 60। कट करेंगे तो ये 15, ये 12 एंड दिस इज 5। तो कितना होगा, 15 रेशो 12 रेशो 5 विल बी योर आंसर। ठीक है, सिंपल है, इससे आसान कुछ नहीं होगा। ये बहुत आसान और सिंपल मेथड है, तो आप इसको एक बार ट्राई कर सकते हो। ठीक है, सो ओनली वन क्वेश्चन वी विल डू हियर, केवल एक क्वेश्चन और करेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, और वो क्वेश्चन होगा हमारा कौन सा, 11th क्वेश्चन होगा। ठीक है, यही थोड़ा टिपिकल सा है इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे सब बच्चे। ठीक है, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 11 माय डियर स्टूडेंट। A bag contains 372 rupees in the form of 50 paise, 25 paise, 20 paise, coin in the ratio 4:5:7. Find the number of each type of coin. देखो यहाँ पे एक सिचुएशन है हमारे पास कि एक बैग है, उस बैग के अंदर हमारे पास 372 रुपीज़ रखे हुए हैं, और वो रखे किस तरीके से हैं कि उस बैग के अंदर 50 पैसे, 25 पैसे और 20 पैसे तीनों के कॉइन्स हैं, मिलाकर वो 372 रुपीज़ हैं, और जिनका रेशो कितना है 4:5:7। तो आपको बताना है कि फाइंड द नंबर ऑफ ईच टाइप ऑफ कॉइन। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल है। तो लेट एज्यूम दैट, सॉल्यूशन क्या होगा इसका, लेट assume that number of 25 पैसे coin, number of 25 पैसे coin कितना है, 25 पैसे का coin का रेशो 25 पे लिखते हैं। सबसे पहले 50 है तो 50 लिखेंगे, 50 पैसे कोइन कितना है, 50 पैसे का रेशो 4, तो 4x लिखेंगे यहाँ पे। सिमिलरली हम 25 पैसे के लिए करेंगे तो कितना होगा बेटा 5x, और सिमिलरली जब हम इसके लिए करेंगे 20 पैसे के लिए करेंगे तो कितना होगा
7x। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी यहाँ तक। इसके बाद क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, तो ये हमारे पास में कॉइन हो गए, ये इनके रेशो हो गए, तो यहाँ पे क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन या अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आप कह सकते हैं। कितना हो गया, तीनों रेशो मिलाकर कितने रुपीज है टोटल, 370। तो 4x प्लस 5x प्लस 7x इक्वल्स टू 372। ऐड करेंगे तो कितना होगा, 5 and 4 9 and 7 16x इक्वल टू 372 and x इक्वल्स टू हाउ मच इज दिस, 23.25। 23.25। The value of x equals to 23.25. So, my dear student, I hope this is not so difficult for you that how many number of 50 paise coin now. अब आपको कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं, क्योंकि x की वैल्यू मैंने निकाल दी है यहाँ पे। तो नंबर ऑफ 50 पैसे कोइन कितना है, 4x। तो आपको सिंपली क्या करना है, 4 का मल्टीप्लाई 23.25 में करना है, सिंपल है। ऐसे ही 5 का मल्टीप्लाई 23.25 में करना है और 7 का मल्टीप्लाई 23.25 में करना है, ठीक है। इन सब का आप मल्टीप्लाई कर लेंगे और उसके हिसाब से जो है आपको, अगर आपको अमाउंट निकालना है इसका, ये ध्यान रखना है, अगर इनका अमाउंट भी फाइंड आउट करना है, तो जैसे 50 पैसे है तो आपको क्या करना होगा, अगर अमाउंट फाइंड आउट करना है तो 50 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 23.25। सिमिलरली 25 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 23.25 एंड सिमिलरली 20 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 23.25। इस टाइप से आप इनके अमाउंट्स को जो है क्या करेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे, सिंपल है, ठीक है जी। तो इस टाइप से आप जो करेंगे, तो अगर रुपीज में चाहते हो तो रुपीज में आ जाएगा ये, और पैसे में अगर निकालना है तो डिवाइड बाई 100 कर लेना, इसको बस इतना कर लेना, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, ठीक है। ओके, बाय। सो दिस इज अनदर क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। A, B, C play cricket such that A runs ratio B runs 3:2 and B runs ratio C runs equals to 6:11. So if the total runs scored are 234, find how much did each score.